हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो द फर्स्ट बेसिक टर्म इज अवर कर्व्स। So what is a curve? A figure formed on a plane surface by joining a number of points without lifting a pencil is called a curve. ऐसी फिगर जो कि हम प्लेन फिगर सरफेस पे ड्रॉ करें और वहां पे सपोज करो देयर आर नंबर ऑफ पॉइंट्स, बड़े सारे पॉइंट्स हो और उन पॉइंट्स को हम अगर ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन आपको कैसे करना है? बिना पेंसिल को उठाए। यानी कि जैसे देयर आर नंबर ऑफ पॉइंट्स, आपने इनको ज्वाइन करना है, अपनी पेंसिल को उठाना नहीं है, बस उसको मूव ऑन करते जाना है। सो दीज इज नोन एज अ कर्व। सो कर्व के जब हम ड्रॉ करते हैं, हमको पेंसिल को पिक नहीं करना है, उनको जस्ट उनसे सिंपल कर्व्स बनाने हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कर्व, वन इज एन ओपन कर्व, अनदर वन इज अ क्लोज्ड कर्व। So what is a open curve? A curve which does not end at the same starting point. ऐसे कर्व जिनका starting और ending point different हो, that are known as an open curve. For example, if I draw a curve here like this, यहाँ पे देख सकते हैं इसका starting point और जो इसका ending point, both are different. So this is a open curve. Next one is a closed curve. A curve which cut itself or which starts and end at the same point is called a closed curve. ऐसे कर्व्स जिनका starting और ending point same हो, that are known as a closed curve. If I draw a curve like this one, आप देखिए इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या था? सेम सा, सो दैट इज अ क्लोज कर्व। वन मोर एग्जांपल, if I draw a circle here, you will see that here starting and ending point is same, so that is the closed curve. So come to the next term, that is our simple closed curve. So simple closed curve, a closed curve called a simple closed curve which does not intersect itself. ऐसी closed curve जो अपने आप को intersect नहीं करते हैं, यानी कि वो किसी पॉइंट पे एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। दैट मीन्स सेम लाइक योर क्लोज कर्व whose starting and ending point are the same. Let us draw some figures like this. This is your square, so this is your rectangle, sorry. So this is the rectangle, its starting and ending point is same. आप देखिए इनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होगा? सेम। इफ आई राइट डाउन हियर ए, बी, सी एंड डी, तो यहाँ देखिए इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होगा? जैसे आप कर्व ड्रॉ करेंगे तो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होगा? सेम। सो दैट इज अ क्लोज्ड कर्व। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. I draw a circle here. So again, what is this? This is a closed, simple closed curve. So next topic is our polygons. A polygon is a simple closed curve formed of a line segments. Polygons जो है वो भी क्या है? सिंपल क्लोज कर्व है। बट द डिफरेंस बिटवीन द बोथ इज दैट दोनों में सिंपल क्लोज कर्व और पॉलीगन में बेसिकली क्या डिफरेंस है? आपने देखा जो सिंपल क्लोज कर्व है वो कोई क्लोज कर्व्स का भी हो सकता है, कर्व्स का मतलब कि लाइन सेगमेंट का भी हो सकता है, बट पॉलीगन सिर्फ किसके बने होते हैं आपके? सिर्फ जो है वो किसके होंगे आपके? सिर्फ लाइन सेगमेंट्स के। जो आपके पॉलीगन्स होंगे वो किसके बने होंगे? आपके सिर्फ लाइन सेगमेंट्स के। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. This is your square. Again, what is this? This is a polygon. One more figure is there. So again, what is this? This is a polygon. Yes. Why this is a polygon? Because ये किसका बना है? आपका line segments का. So next one, I will take one more figure here. So you have to show me, is it a polygon? Yes or no? Now tell me, is this is a polygon? Yes or no? No, this is not a polygon. क्यों नहीं है polygon? Because the given figure is not made up of a line segment. जैसे कि आप देखिए ये जो है आपका line segments का बना है, so it is a polygon. This is also a polygon and this is not a polygon. क्योंकि ये closed curve तो है, simple closed curve है, but this is not a polygon because it is not made up of a line segment. अब depending on the number of lines, there are different types of a polygon. So सबसे starting वाला जो सबसे
फर्स्ट पॉलीगन है दैट इज अवर ट्राइंगल, बिकॉज आपको पता है कोई भी जो क्लोज्ड कर्व है उसको मिनिमम कितनी साइड चाहिए, 3 साइड चाहिए ताकि हम क्लोज कर सके। बिकॉज इफ यू आर हैविंग अ 2 लाइन सेगमेंट, अगर आपके पास 2 लाइन सेगमेंट है तो आप उनसे कोई भी क्लोज फिगर ड्रॉ नहीं कर सकते। तो जो सबसे छोटा पॉलीगन है दैट इज अवर ट्राइंगल। एंड आफ्टर दैट देर आर हाउ मेनी साइड्स आर देयर in this figure? How many line segments are there? 4 line segment. So any figure which is having a 4 line segment that is known as a quadrilateral, जो कि आपके चैप्टर का नाम भी है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मींस कि जिसकी कितनी साइड्स हो, हमारी 4 साइड्स हो, ऐसे फिगर्स को हम क्या बोलेंगे? पॉलीगन। सो ऐसी लाइन फिगर्स जो कि लाइन सेगमेंट से बनी हो दैट इज नोन एज अ पॉलीगन। कम टू द नेक्स्ट वन, what is a diagonal? The line segment joining any two non-consecutive vertices of a polygon is called its diagonal. तो ऐसी फिगर, लेट अस टेक एन एग्जांपल ताकि आपको क्लियर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नॉन कॉन्जिक्यूटिव? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है वर्ड कॉन्जिक्यूटिव। I am saying consecutive means one after the other. Like if I am take a number 3 4 5, 3 4 5 क्या है? हमारे consecutive numbers हैं। 6 7 8 is also consecutive numbers हैं। नॉन consecutive का मतलब यानी कि जो सीरीज में चलें they are consecutive। नॉन consecutive आ गया, अगर सपोज if I have a number 1, 1 के बाद कौन सा नंबर आता है? 2। सो मैं 2 को रिमूव करके after 2 which number comes? 3। so 1 3 5 एक एक छोड़ के they are known as the non consecutive numbers। बट यहाँ पे हमारी नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस की बात हो रही है। वर्टिसेस मीन्स कॉर्नर्स विद द 2 लाइन सेगमेंट मीट। सो वर्टिसेस, ऐसी वर्टिसेस आपने क्या करना है, एक के बाद एक। इफ आई विल टेक अ नेम एट ए, अगर इसको मैं ये दे देती हूँ, इसको बी सी एंड डी। जैसे ए के बाद बी आएगा, आपने बी को छोड़ देना है और ए और सी को क्या कर देना है? ज्वाइन कर देना है। सो ए सी इज द डायगोनल। लाइकवाइज इफ यू ज्वाइन बी डी दैट इज ऑल्सो अ डायगोनल्स। सो एक के बाद एक को छोड़ के आपने ऐसी फिगर्स को, ऐसी लाइंस को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल्स। कम टू द नेक्स्ट वन दैट इज अ कन्वेक्स एंड अ कनकेव पॉलीगन। अब कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन में क्या डिफरेंस है? अ पॉलीगन इज सेड टू बी अ कन्वेक्स इफ इट हैज नो पोर्शन ऑफ इट्स डायगोनल इन इट्स एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है? ऐसे पॉलीगन जिनमें हम डायगोनल्स तो ड्रॉ कर सकते हैं बट बाहर नहीं ड्रॉ कर सकते। आई विल टेक एन एग्जाम्पल लाइक दिस वन। मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ आपका। सो गिवन फिगर इज हैविंग हाउ मेनी साइड्स? कितने साइड्स हैं इसकी? 5 साइड्स। सो द नेम ऑफ दिस पॉलीगन इज पेंटागन। इस फिगर का नाम क्या होगा हमारा? बिकॉज इट इज हैज 5 साइड्स, सो इट इज अ पेंटागन। ऐसे पॉलीगन का नाम जिसका 5 साइड दैट इज अ पेंटागन। सो व्हाट इज दिस? विच टाइप ऑफ पॉलीगन इज दिस? दिस इज अ कन्वेक्स पॉलीगन। ये आपका कौन सा पॉलीगन है? दैट इज योर कन्वेक्स। कन्वेक्स क्यों है? क्योंकि हम इसके बाहर कोई भी डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। जितने भी डायगोनल होंगे वो कहाँ पे बनेंगे? इसके अंदर। जैसे कि आप ये देखिए, जैसे ये और ये मैंने एक के बाद एक को छोड़ दिया। सो व्हाट इज दिस? इज अ डायगोनल। अगेन लीव दिस वन एंड जॉइन दिस वन। दिस इज अ डायगोनल। से लाइकवाइज आप जितने मर्जी चाहे इसमें डायगोनल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। सो जिनके डायगोनल्स, और यू कैन से जिनके डायगोनल्स फिगर के अंदर बने दैट इज अ कन्वेक्स पॉलीगन। सो कम टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज अ कनकेव पॉलीगन? सो लेट अस टेक वन मोर फिगर ऑफ अ concave polygon. Look at this one, this figure. तो इसके जो डायगोनल्स हैं, अगर आप चाहे तो इसको कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं? आप चाहो तो इसके डायगोनल्स को हम बाहर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं चाहूँ तो इसके डायगोनल को बाहर भी ड्रॉ कर सकती हूँ। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज दिस इज योर फिगर। आप इसके डायगोनल को देखिए, इसका जो डायगोनल है वो कहाँ पे है? बाहर है।
सो ऐसे फिगर्स जिनके डायगोनल्स बाहर ड्रॉ होंगे दैट इज नोन एज ए कनकेव, और जिनके डायगोनल्स अंदर की तरफ ड्रॉ होंगे दैट इज नोन एज ए कन्वेक्स पॉलीगन. सो दोस पॉलीगन हुज डायगोनल्स आर इनसाइड द फिगर दैट इज ए कन्वेक्स, और जिनके जो डायगोनल्स होंगे वो बाहर की तरफ बनेंगे दैट इज अ कनकेव पॉलीगन. सो नेक्स्ट वन इज अवर so this slide will come. So next one is our what is a regular polygon? A polygon which is both equiangular and equilateral is called a regular polygon. So what is a regular polygon? Regular means equal. Regular का मतलब ही हमारा क्या है? That means equal. So ऐसे polygons जिनकी सारे एंगल्स इक्वल हो, जिनके सारे एंगल्स क्या हो? इक्वल हो, दैट इज नोन एज ए इक्विएंगुलर. और जिनकी सारी साइड्स क्या हो? इक्वल हो, दैट इज नोन एज अ रेगुलर पॉलीगन. आपको जैसे मैंने बताया जो सबसे मिनिमम साइड वाला पॉलीगन है दैट इज अ ट्राइंगल. सो टेल मी एनी नेम ऑफ अ ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल. So which triangle is having all sides and angles equal? That is your equilateral triangle. Equilateral triangle, as you know, in equilateral triangle all the sides and angles are equal, so it is a regular polygon. One more example of a regular polygon is that a figure having a four sides and whose all sides are equal, that figure is known as a, what is known as a, that is known as a square. तो स्क्वायर ऐसी फिगर है जिसकी सारे साइड्स और एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल. So next topic is our irregular polygon. Next term is a polygon which is equiangular but not equilateral is called a irregular polygon. For example, a rectangle. ऐसे polygon जिनके angles तो equal होते हैं but उनकी sides equal नहीं होती. For example, your rectangle, as you know that in a rectangle all the sides are not equal, only opposite sides are equal, but all the angles are equal. As you know that in a rectangle, each angle is always 90 degree. That means your rectangle is a irregular because उसकी सारी sides तो opposite sides equal है, but जो सारे angles हैं वो क्या है आपके equal हैं. So that is a irregular polygon. So next one is our next is sum of the measure of exterior angle of a polygon is 360 degree. जितने भी हमारे एक्सटीरियर एंगल हैं किसी भी पॉलीगन्स के, उनके हमेशा जो एक्सटीरियर एंगल होंगे उनका हमेशा सम कितना होगा? 360. फॉर एग्जांपल इफ यू टेक दिस ट्रायंगल, इफ you know that this is your interior angle and this is your एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल होंगे जो फिगर के बाहर बनते हैं. तो जितने भी हमारे फिगर के बाहर वाले एंगल्स हैं अगर हम उनको सबको ज्वाइन करेंगे तो उनका सम हमेशा कितना होगा? 360. इफ आई राइट डाउन हियर x, दिस इज y एंड दिस इज z, और अगर मैं तीनों की एक्सटीरियर एंगल का जब भी सम करूंगी उन तीनों एंगल का जो सम होगा हमेशा कितना आएगा? 360 degree. Likewise, this is your rectangle and suppose this is A, B, C and D, and again this is a your, and sum of all this exterior angle is always equals to 360. That means A plus B plus C plus D is equal to 360 डिग्री. अगर आपको कोई भी फिगर दी होगी उनके जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे उन सब एंगल का हमेशा सम कितना होगा? 360. सो दीज आर ऑल द बेसिक टर्म्स रिगार्डिंग योर चैप्टर. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो.